zanina pathianin chutak mai minan buat se sak leya sai pum joint ministry kaltlangin hun karon mang le don niya zanina hianin huai tu hi tlangwal an julin moya te kaniya solo hi pati kanaya mula lerin ruamile mula keralini aniya sarmon ministry saktu turin Evan Laxman Rai aniyang ama sain kan khom ning kai khoi tu tan thian kim tiring na kan nei sange tu fing te bung som pakwa chang na thu hi kan siar nge se tu der chu shem lovin om lovanga do soi chu achok lovang midam takin mi thil phal du sakna an nge na thil pe thin tu laka chuan meeting mai hi thian ani athu kan han tirik te lalpan kan za tan na li som sak se kan in khom na te planin trong try ang lalpa kan pathian tu tak min mai tu voing le yang nong kuin sanina lalpa sai kun join ministry kal tanin thu le lai ko te nei turing kan kal khom le nia lalpa sanina hian yum pui ke khoina kan inen na kan di la lalpa zanna hun nei tu zong te tharau thian mong pui turing ni ta ko tir ni chuan kan za mun man tu kan khom lai ni ti boi te tu swal setan thol ka nang man be ngam pui turing heng chanam tu kan lalpa ta pi swangin lom thu te soi chuin ni hena ram yin kan na ne amen solo kan ko anga mula darin tuangi zai turing kasomanga kasomzua kan soi tu Evan Laxman Rai in hunaron manga anin solo tu bhajo chu adu hunaron ko ma thame chuanin kan hun nei tu hianin kan sarman nei tu hianin apule chang to khenga hun ron chang turin hun kan na ro se zanin hun shau do mit petu ban pathian et sunri shopping fakki kampo se amen Lady
hun chatak mai pathian in nan bele a masa in pathian ne na lom thu kan sei masa a tinai zanin asa kunjong ministry te pathian in hun ram cha min sial sak le a tin khom na hun chatak mai in bo sei sak le a kan shoi tu te hian in zanin hun chang le thei tura min du saka ba ko an chunga lom thu kan sei ni sela a thange le tuna an solo khat kan la ya kan kong ma la ma kan solo tu he nula kerelini ani a ani an pathian fakna la mi ron sak sela ti chuanin kan tu puila ma kan chodon ya le tuna pathian la fakna la sa turin nula kerelini so bu Shine.
nula kebeli ini le nula sila duangi patien tak nula motak orang saksaka cuma long tu kan saya tak saya ni le sani lah hening kat trong orang mantu lagi Hindi alidona coba cuarin sani lah ni patien tu Hindi insai kan tundona ni tiga kan saya lokang sani sila achange आइए आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनकी आराधना लोक में फिर से उनकी सेवा करें। आराधना करने के लिए परमेश्वर के प्रेम, उसके अनुग्रह और उसकी आशीष के द्वारा से फिर से हम विश्वासियों को यहाँ पर इकट्ठे किए हैं और हम सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ हमारा साइकिल जॉय मिनिस्ट्री हमारे अगुवाई करता उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस स्थान पर परमेश्वर की वचन को प्रकट करने के लिए मुझे चुना गया है, तो इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आइए मैं यहाँ पर पवित्र बाइबल दो जगह से मैं पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा और प्रार्थना करने के बाद हमारे विषय पर हमारे मन, हमारे आत्मा, हमारे शरीर को अर्पण करने की कोशिश करेंगे। और इतने नहीं, आज रात यहाँ पर जितने लोग भी ये YouTube के द्वारा जो देख रहे हैं ये परमेश्वर के वचन और इस आराधना को, उन सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस वचन को अपने मन पर सुने, विश्वास करें और विश्वास में आगे बढ़ सकने के लिए, इस्तेमाल कर सकने के लिए उन सभी लोगों के लिए मैं भी निमंत्रण करता हूँ। आइए परमेश्वर की पवित्र बाइबल पढ़े। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 23 पद पर, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 23 पद पर आइए पढ़ना आरंभ करें। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते तो अपने आप से इनकार करे और प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वे उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो ही उसे बचाएगा। और दूसरी जगह पर मैं पढ़ना चाहूंगा फिर से, गलतियों के 2 अध्याय के 20 पद पर, गलतियों के 2 अध्याय 20 पद पर फिर से छोटी सी मैं पढ़ना चाहूंगा। मैं मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, पर मसीह मुझ पर जीवित है। इस वचन पढ़ाई जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष करे, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम और तेरे आशीष के द्वारा आज फिर से यहाँ पर साइकिल जॉय मिनिस्ट्री के द्वारा तेरे वचनों को हम प्रकट करने जा रहे हैं, तेरे वचनों को हम सुनाने जा रहे हैं। प्रभु आज इस वचन को भी हम तेरे हाथ में अर्पण करते हैं और यहाँ पर जो वचन हम प्रकट करते हैं प्रभु, सुनने वाले के हृदय में प्रभु तू कार्य कर और इस वचन के द्वारा से जितने भी आज रात यहाँ पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को प्रभु तू आशीष कर की तेरे वचन के द्वारा उनके जीवन पर प्रभु विश्वास में कोई आगे बढ़ सके और इस तेरे वचनों को प्रकट करते हुए हम तेरे राज्य को बढ़ा सके
और इस संसार पर जितने भी अनविश्वासी भाई लोग के प्रभु और विश्वासी लोग के उन सभी को ये वचन सुनकर तुझे विश्वास कर सके, ग्रहण कर सके, स्वीकार कर सके प्रभु। और आज रात की सेवा कार्य को भी शुरू से अंत तक तेरे हाथों में हम सौंपते हुए ये विनती प्रार्थना मांगते हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आज का हमारा विषय जो है कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ, आज का हमारा ये विषय है। तो इसी विषय के द्वारा आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इस विषय जो है कि खास करके हम विश्वासी भाई बहन लोगों के लिए है। और इतना ही नहीं, ये आज हमारा विषय जो हमने आज रात चुना है, मैंने चुना गया है कि यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है। और आज हम लोग जीवित तो है, लेकिन हम परमेश्वर के पीछे तो चल रहे हैं, हम परमेश्वर को विश्वास तो कर रहे हैं, उनके आराधना तो कर रहे हैं, हम विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन हम किस प्रकार से उनको हम मान रहे हैं, हम किस प्रकार से उसको विश्वास कर रहे हैं और किस प्रकार से उसके पीछे चल रहे हैं, हम इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर एक विश्वासी, हर एक मनुष्य लोग हम परमेश्वर को पीछे तो चलते हैं, हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु को सिर्फ मुंह से ही विश्वास करना काफी नहीं है। यीशु को सिर्फ हम अपने जबान से विश्वास करते, हम लोग कहते सिर्फ ये काफी नहीं है। इसलिए यीशु को विश्वास करने के लिए, उनके पीछे चलने के लिए आज सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो चीज होता है कि अपने मन, अपने आत्माओं से उनके पीछे चलने के लिए अपने आप पर यीशु के चरण में अर्पण करना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए यहां पर एक नंबर में मैंने लिखा है कि कहता हूं कि अपने आप से इनकार करें, अपने आप से इनकार करें। ये इनकार का मतलब हम लोग समझते होंगे, किसी चीज को अगर एक उदाहरण के लिए, अगर किसी चीज को हम लोग नहीं चाहते हैं, उसके साथ हम खरीदना नहीं चाहते हैं, हम लेना नहीं चाहते हैं, तो हम उनको इनकार करते हैं। हाँ, हम उसको इनकार करते हैं क्योंकि वो खराब चीज है। हाँ, वो खराब चीज होने के वजह से हम नहीं खरीदते हैं। या कोई साग सब्जी हो या कोई दुकान में जाकर कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, अगर वो खराब चीज है तो हम उसको नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो खराब सामान है। खराब होने के वजह से हम वो नहीं खरीदते हैं, हम उनको इनकार करते हैं। उसी तरह से अपने जीवन में भी हम परमेश्वर के पीछे चलते समय में, जो अभी हम विश्वासी लोग परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, उस घड़ी उसी समय में भी आज हम लोगों को अपने जीवन पर, अपने आत्माओं पर अपने आप को इनकार करना बहुत ही जरूरी है। इसका अर्थ ये होता है, इनकार का मतलब अर्थ ये होता है कि हम यीशु के पीछे चलते समय, यहां पर अभी मैंने लूका रचित सुसमाचार के 23 अध्याय पर मैंने पढ़कर सुन चुके हम लोग कि वहां पर लिखा है, जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप से इनकार करें। यीशु ने खुद कहा है, अपने आप से इनकार करें। इनकार जो है कि यीशु के पीछे चलने के लिए संसारिक चीजों के साथ हम लोग नहीं चल सकते हैं, संसारिक चीजों के साथ हम लोग उसके पीछे नहीं चल सकते हैं। हाँ, एक अपने मन को एक पापी के रूप पर सोचकर हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते, यीशु के पीछे नहीं चल सकते हैं। अपने आप को इनकार करना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से हम लोग संसारिक चीज में डूबे हुए हैं, हम रुपए पैसों में डूबे हुए हैं, हम मौज मस्ती पर डूबे हुए हैं, हम दारू पीते हैं, हम लड़कियां इस्तेमाल करते हैं, और उसी तरह से हम यीशु को मानते हैं, उनके पीछे चलना चाहते हैं, तो वो यीशु कभी भी नहीं अपनाएगा। वो सब चीजों को छोड़कर हम यीशु के पीछे चलने के लिए अपने आप को इनकार करना है। एक पवित्र रूप होकर, एक सच्चे विश्वासी होकर उनके पीछे चलने के लिए अपने आप को त्यागना बहुत ही जरूरी है। यहां पर लिखा गया है, जब यीशु को भी इस संसार में उनके सेवा कार्य करते समय में भी उनके 12 जन चेलों में से एक चेले के विषय में मैं कहना चाहता हूं, उसका नाम जो है कि पतरस था। वो यीशु के एक चेले थे।
वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक चेला था, वो पतरस। वो पतरस भी परमेश्वर यीशु के पीछे चलने से पहले वो क्या करता था कि वो एक मछली वाला था, मछुआरा वाला था, मछली पकड़ता था। हाँ, नदी पर जाकर अपने जाल को ले जाकर वो मछली पकड़ता था, अपने पेट को पालता था, अपने परिवार को पालता था। हाँ, वो एक मछुआरा था, वो मछली पकड़ने वाला एक पतरस था। लेकिन जब यीशु ने उनके पीछे चलने के लिए कहा तो क्या किया पतरस ने? उसने कुछ बहाना नहीं बनाया। जब यीशु ने मेरे पीछे हो ले बोलकर यीशु ने उस पतरस को जब जवाब दिया, तब पतरस ने बहाना नहीं बनाया, यीशु के पीछे चलने के लिए इनकार नहीं किया। यीशु के पीछे चलने के लिए उसने अपने आप को अर्पण किया, उसने इनकार नहीं किया। हाँ, सकता था वो इनकार कर सकता था, चाहे तो वो पतरस इनकार कर सकता था कि मैं अपने मछली पकड़ते समय में जब पतरस को यीशु ने उनके पीछे चलने के लिए कहा था, उस घड़ी समय वो अपने काम कर रहा था, वो मछली पकड़ रहा था। लेकिन उस घड़ी समय में भी पतरस इनकार कर सकता था कि यीशु के पीछे चलने के लिए इनकार कर सकता था, लेकिन पतरस ने इनकार नहीं किया, क्योंकि चाहता था वो इनकार कर सकता था। मैं अपने मछली पकड़ते समय में आपके पीछे नहीं आ सकता हूं ना, मैं अगले हफ्ता आपके पीछे आऊंगा, शायद ये भी कह सकता था, या तो मैं अगले महीना फिर से आऊंगा, ये भी कह सकता था। लेकिन पतरस ने कुछ बहाना नहीं बनाया, कुछ नहीं कहा। वो अपने मछली के जाल को वहीं पर छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगा। यीशु के एक चेला, सच्चे चेले विश्वासी बन पाया। उसी के आधार के रूप पर, उसी के अनुसार हम विश्वासी भी परमेश्वर आज आपको मुझे पुकार रहे हैं। उनके पीछे चलने के लिए आज यीशु आज हम लोगों को पुकार रहे हैं। यीशु के पीछे हम लोग चलना तो चाहते हैं, यीशु के गुनाह को हम स्वीकार तो करना चाहते हैं, लेकिन आज अपने जीवन पर हम इनकार करना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह से उस पतरस ने अपने मछली के जाल को वहीं पर छोड़कर वो यीशु के पीछे चलने लगा था, उसी तरह से आज आप भी, मैं भी यीशु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन से कुछ त्याग देने का समान है। त्याग देना बहुत ही जरूरी है। अपने जीवन से कुछ त्यागना बहुत ही जरूरी है यीशु के पीछे चलने के लिए। अगर अपने जीवन में वो सब कुछ लेकर चलना चाहते हैं तो यीशु के पीछे नहीं चल पाएंगे। अपने आप को इनकार जब तक नहीं करेंगे, आप अपने आप को नहीं त्यागेंगे, तब तक आप यीशु के पीछे नहीं चल पाएंगे। पतरस ने भी अपने मछली के जाल को वहीं पर छोड़कर सब कुछ वहीं पर उस नदी पर त्याग कर यीशु के पीछे चलने लगे थे, यीशु के पीछे चलने लगा था। उसी तरह से आज आपको भी, मुझे भी, हर एक विश्वासियों को भी उनके पीछे चलने के लिए अपने आप को त्यागना बहुत ही जरूरी है। अगर अपने आप को जब तक नहीं त्यागेंगे, अपने आप को इनकार नहीं करेंगे, तब तक आप यीशु के पीछे नहीं चल पाएंगे, तब तक आप एक सच्चे विश्वासी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए अपने जीवन पर जितने भी हम लोग सोच विचार करते हैं, वो सोच विचार जो है कि एक पापी रूप से हम सोचते हैं, तो वो सब कुछ त्याग कर हम यीशु के पीछे चलना, अपने आप को इनकार करके यीशु के चरण में अर्पण करना आज हमारा कर्तव्य होता है। इसीलिए आज भाई बहन, हम सभी विश्वासी लोग यीशु के पीछे चलने के लिए, अपने आप को इनकार करने के लिए, अपने आप को इनकार करते हुए यीशु के पीछे हम आगे बढ़े। और यहाँ पर फिर से अपने जीवन में कुछ त्याग देना चाहिए, अपने जीवन में कुछ त्याग देना चाहिए। कितना महत्वपूर्ण है ये वचन, अपने जीवन में कुछ त्याग देना चाहिए। इसका अर्थ ये होता है कि मैंने अभी गलतियों के 2 अध्याय के 20 पद पर मैंने पढ़कर अभी आप लोगों को सुना चुका हूं। यहां पर लिखा है कि गलतियों के 2 अध्याय के 20 पद पर, मैं मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा। मैं मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, लेकिन अब मैं जीवित नहीं रहा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया है, लेकिन वो अब तो जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। लेकिन
मसीह उसके जीवन पे जीवित है। इसका अर्थ यह होता है कि जितने भी हम लोग सांसारिक चीजों में, सांसारिक चीज में हम लोग बुराई करते हैं, हाँ, हम लोग बुराई सोचते हैं, वो सब कुछ यीशु के साथ आज हम लोग क्रूस पर चढ़ा चुका है। क्रूस पर हम लोगों को चढ़ा चुका है विश्वासी लोग। तो हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार से हम लोग नहीं जी रहे हैं। हम लोग जी रहे हैं तो यीशु की इच्छा के अनुसार से जी रहे हैं। मुझ पर जीवित है, पर मसीह मुझ पर जीवित है। पर यीशु मसीह आज अपने जीवन पे, आप लोगों के जीवन पे जीवित रहे। उसका अर्थ यह होता है कि यीशु ने भी आज आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हर एक मनुष्य के लिए आज क्रूस पर चढ़ाया गया है। हर एक मनुष्य के लिए आज यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया है। तो इसीलिए आज अपने जीवन पर झांकर देखे, अपने मन पर झांकर देखे, अपने मन पर सोच कर देखे कि ये जीवन जो मुझे दिया गया है, ये जीवन जो मुझे मिला गया है, ये कहां से? यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा गया है। उसी के बलबूते के द्वारा, उसी यीशु के द्वारा आज हम लोग जीवित है। इसीलिए अपने मन पर, अपने आत्माओं पर यीशु को रखते हुए उनके पीछे चलना है और अपने जीवन पर यीशु को स्वीकार करके उनके पीछे चलना है। कहीं विश्वासी लोग तो ऐसे भी होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार से जीने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अपने दिमाग से हम लोग सोचते हैं, उसी दिमाग के सोच के अनुसार से मनुष्य कितने लोग जी रहे हैं, चल रहे, फिर रहे हैं। इस दुनिया में कितने मनुष्य लोग हो अभी हम लोग हैं, लेकिन वो मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार से जी रहे हैं, अपने बलबूतों के वजह से जी रहे हैं, ये से सोचते होंगे। अपने दिमाग के वजह से वो जी रहे होंगे, इसे सोचते होंगे। लेकिन वो मनुष्य अपने बलबूतों के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा, अपने इच्छा के अनुसार के द्वारा जो मनुष्य जीता है, वो मनुष्य कभी भी परमेश्वर के चरण में कभी भी नहीं जा पाएंगे। जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार से जीता है, जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार से इस संसार में जीवन बिता रहा है, वो मनुष्य परमेश्वर के चेले के लायक नहीं है। वो मनुष्य परमेश्वर के विश्वासी के लायक नहीं है। यहां पर खुद कहा है कि गलतियों ने कहा है कि मुझ पर मसीह मुझ में जीवित है, मुझ पर मसीह जीवित है। जो विश्वासी लोग अपने जीवन पर मसीह को जीवित करके वो जीते हैं, वो एक सच्चे विश्वासी बन पाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन पर मसीह को जीवित ना रखते हुए अपनी इच्छा के अनुसार से जीते हैं, चलते हैं, वो मनुष्य लोग जो होते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से नहीं, वो अपनी इच्छा के अनुसार से जीते हैं। लेकिन वो मनुष्य ज्यादा देर नहीं जी पाते, वो मनुष्य ज्यादा देर नहीं चल पाते। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से जीता है, जो मनुष्य यीशु की इच्छा से चलते हैं, वो मनुष्य हर हमेशा उनके संग परमेश्वर रहते हैं और उनके संग परमेश्वर के अनुग्रह, दया, प्रेम, आशीष हर हमेशा रहता है। इसीलिए अपने जीवन में कुछ त्याग देना, अपने जीवन पर प्रत्येक दिन क्रूस उठाना, यीशु के पीछे चलने के लिए प्रत्येक दिन क्रूस उठाना, अपने आप को त्यागना और दुख उठाकर उनके पीछे चलना विश्वासी को कर्तव्य होता है। क्योंकि यीशु ने आज आपके लिए, मेरे लिए दुख उठाया हुआ है। आपके लिए, मेरे लिए उसने क्रूस उठाया हुआ है। इसीलिए आज हम यीशु के दुख को समझते हुए, वो मेरे लिए दुख उठाए हुए हैं, वो मेरे लिए अपने प्राण त्यागा हुआ है, सोचकर हम यीशु के पीछे चलना बहुत ही जरूरी है। और 3 नंबर यहां पर कहा है कि परमेश्वर के पीछे चलने के लिए दुख उठाकर चलना चाहिए। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए दुख उठाकर चलना चाहिए। दुख का मतलब हम लोग समझते हैं, जब हम लोग के परिवार पर तकलीफ आते हैं, हम लोग के परिवार पर दुख, बीमार से भरिपूर्ण होते हैं, हम लोग को बहुत दुख लगते हैं, बहुत तकलीफ होते हैं कि हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो। लेकिन यहां पर लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के
57 पद पर इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु इस संसार में उनके पिता के इच्छा के अनुसार सेवा कार्य कर रहे थे, तो वहां पर कितने मनुष्य लोग थे कि परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए बहुत सारे मनुष्य उनके पीछे चलते थे। हाँ, उनके पीछे क्यों चलते थे? यीशु के पीछे क्यों चलने लगे थे वो मनुष्य लोग? क्योंकि जब यीशु इस संसार में उनके सेवा कार्य कर रहे थे, तो बहुत ही अचम्म काम कर रहे थे। यीशु बहुत ही अचम्म काम कर रहे थे। मरे हुए मनुष्य को, लजर को हम मालूम है, हम पता बाइबल में हम पाते हैं, लजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके थे। वो लजर एक परमेश्वर यीशु के एक दोस्त था, वो मरे हुए 4 दिन हुए थे, लेकिन उस लजर को जीवित किया यीशु ने। मरे हुए लजर को 4 दिन हो चुके थे, लेकिन यीशु ने फिर से उस लजर को जीवित किया था। हम पवित्र बाइबल में पाते हैं। तो इतना ही नहीं, लंगड़े को चलने के लिए शक्ति दिया। जो अंधा था, वो कभी भी बचपन से लेकर देख नहीं पाता था, उसको देख सकने के लिए आंख दिला दिया परमेश्वर ने, यीशु ने। सब कुछ देख सकता था। भूखे हुए इंसान को उसने खाना दिया यीशु ने। कितने मनुष्य को वहां पर खाना, मछली और रोटी के द्वारा उसने पेट भरा दिया। कितने मनुष्य को? 5000 मनुष्य को। इससे भी और बड़े बड़े काम किए थे यीशु ने। और वो चीज देखकर यीशु के पीछे चलने वाले बहुत सारे थे। उनके पीछे चलने के लिए, यीशु के पीछे चलने के लिए बहुत सारे थे, क्योंकि यीशु ने बहुत अचम्म काम किए थे। उसी तरह से लजर को भी मरे हुए 4 दिन होकर भी उसने जीवित किया। लजर को भी अपने जीवन पर, हाँ, अपने जीवन पर त्यागते हुए समय, अपने आप को इनकार करते समय में भी जिस तरह से लजर को जीवित किया था, उस लजर को कपड़े से बांधे हुए थे। उस कपड़े को खोलकर लजर को चलने के लिए कहो बोलकर जब लजर को जीवित किया था, तो उस बंधे हुए शरीर को कपड़े से खोलकर लजर को चलने के लिए कहा, यीशु ने आज्ञा दिया। उसी तरह से आपके जीवन में, मेरे जीवन में कुछ खोलना बहुत ही जरूरी है। हमारे जीवन से, हमारे आत्मा से, हमारे मन से दूर होना, जैसे लजर को उस कपड़े से बंधा हुआ खोला था, उसी तरह से आज अपने जीवन में खोलना भी बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ है हम मनुष्य के जीवन में यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, तो उसी तरह से आज यीशु के दुख उठाकर उसके पीछे चलने के लिए दुख उठाना बहुत ही जरूरी है। यहां पर लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय में मैंने अभी भी कहा था, यीशु के पीछे चलने के लिए बहुत सारे लोग थे। उनके पीछे चलने के लिए बहुत सारे इंसान आते थे, मनुष्य आते थे। यीशु को चलने के लिए रास्ता भी नहीं होता था। लेकिन उसी घड़ी समय कितने मनुष्य ने कहा, यीशु मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं बोलकर कहीं मनुष्य ने कहा, तेरे पीछे आने के लिए हम वादा करते हैं, लेकिन पहले जाकर अपने घर पर जाकर मैं विदा ले लूं, मैं जाकर अपने पिताजी को गाड़ दूं। हाँ, मरे हुए मेरे पिताजी को पहले मैं गाड़ दूं, उसके बाद मैं तेरे पीछे आना चाहता हूं। पहले कहीं लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि मैं अपने घर पर जाकर मैं विदा लेकर आता हूं, तब जाकर मैं तेरे पीछे आता हूं। ऐसा भी कहीं लोगों ने तो कहा। लेकिन यीशु ने उन जैसे मनुष्य को उनके पीछे चलने के लिए नहीं चाहता है। सबसे पहले हम अपने जीवन पर यीशु को रखना चाहिए। सबसे पहले अपने काम को, अपने परिवार को छोड़कर हम सबसे पहले यीशु को एक नंबर पर रखना चाहिए। उनके पीछे चलने के लिए अगर हम चाहना चाहते हैं, तो अपने आप से इनकार करना चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन उसके क्रूस उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने परिवार को नहीं, हाँ, अपने माता पिता को नहीं, अपने भाई बहन को नहीं, सबसे पहले यीशु को आगे रखना चाहिए। तब जाकर हम यीशु के पीछे चल पाएंगे, तब जाकर हम उनके क्रूस को उठा पाएंगे। कहीं विश्वासी लोग ऐसे भी होते हैं। यहां पर लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 23 पद पर ऐसा कहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहते तो प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो। यीशु ने कहा है
प्रत्येक दिन उसके क्रूस को उठाने के लिए आज विश्वासी लोग तैयार है कि नहीं? उसके क्रूस को हम लोग आज तक उठा रहे हैं कि नहीं? उसके क्रूस को आज हम लोग उठा पा रहे हैं कि नहीं? ये सोचना बहुत ही जरूरी है। यीशु ने कहा है प्रत्येक दिन कोई मेरे पीछे आना चाहते तो प्रत्येक दिन मेरे क्रूस को उठाए और मेरे पीछे बोले, यीशु ने कहा है। तो आज कई विश्वासी लोग ऐसे भी होते हैं, हम उनके क्रूस को उठाते तो हैं लेकिन कभी हम लोग छोड़ देते हैं और कभी उठा लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं। ऐसे विश्वासी लोग भी हम लोग बहुत ज्यादा मिल रहे हैं अभी। लेकिन यीशु ने तो कहा कि प्रत्येक दिन को उसके क्रूस को उठाना है। उसके क्रूस को उठाने का अर्थ यह होता है कि दुख उठाना है हम लोगों को। उनके सेवा कार्य करते समय में भी, उनके आराधना करते समय में भी, उनके पवित्र स्थान में जाते समय में भी हम लोग के जीवन पर जरूर दुख होगा। उसी घड़ी समय में भी हम लोगों को दुख होते समय में भी, दुख उठाते समय में भी यीशु की सेवा कार्य में हम आगे बढ़ना है। हम विश्वासियों को वो है क्रूस का अर्थ, वो है दुख का अर्थ। अगर हम लोग कहीं एक दो बार हम पवित्र स्थान पर जाते हैं उनकी सेवा कार्य करने के लिए, हम अब एक दिन जाते हैं दूसरे दिन नहीं जाते हैं। हम जब हमारे मन पर सेवा कार्य करने का मन हो तब जाते, अगर कोई मन ना हो तो हम लोग नहीं जाते। ऐसे विश्वासी को नहीं करना है। अगर हम लोग के जीवन में परमेश्वर की सेवा कार्य करने के लिए इच्छा हो या इच्छा भी ना हो, हम विश्वासी का कर्तव्य ये होता है कि हम परमेश्वर की सेवा कार्य करें। अपने जीवन में चाहे दुख भी आए, कोई बाधा भी, तूफान भी आए, हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए कभी भी नहीं छोड़ना है। अपने जीवन पर कुछ जाए, जो कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर के सेवा कार्य में दुख उठाते हुए उनके पीछे चलना है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ यही है। अगर हम यीशु के पीछे चलने का अर्थ आज तक हम लोगों ने नहीं समझा है तो यह है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। दुख उठाते समय अपने जीवन में कुछ त्याग कर यीशु के पीछे चलना है और अपने आप से इनकार करते उनके पीछे चलना है। यह है परमेश्वर के पीछे चलने का अर्थ। यीशु ने यही हम विश्वासियों को कहा है कि दुख उठाते हुए उनके पीछे चलना है, अपने आप को इनकार करना है, अपने जीवन से कुछ त्याग देना है और दुख उठाते हुए उनके पीछे चलना। यह हम लोग विश्वासियों का कर्तव्य होता है। और इस पर परमेश्वर के वचन पढ़ाए और प्रकट करने जाने पर परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आमीन। आइए, हमारे अगुवाईकर्ता ने मेरा समय जो है कि अंतिम तक मेरे हाथों में दिया गया है, तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करने के बाद में इस सभा को हम समाप्त करेंगे। लेतुना सुनिन तेना चोंटाइना कलेगा कंट्रोल तू का हम तो क्या इनका कुत्ता धारा सुनिन चोंटाइ जोना कन जाने हम कन तो निया कन तो निया अत्यंत माकूम चोंटाइ। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्रभु परमेश्वर पिता, फिर से इस स्थान पर, पवित्र स्थान पर तेरी आराधना सेवा कार्य करने के लिए तूने हम सभी को उपस्थित किया और जो तेरे वचन को प्रकट कर सकने के लिए प्रभु तूने मेरे शरीर आत्मा को तूने इस्तेमाल किया। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु परमेश्वर पिता इतने ही नहीं, जो तेरे वचनों को यहाँ पर यीशु के पीछे चलने का अर्थ, इसके विषय लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर तेरे वचनों को प्रकट किए हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा से यहाँ पर आज रात जितने भी यहाँ पर सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, प्रभु उन सभी को तू आशीष कर। इस वचन को सुनकर प्रभु तेरे विश्वासी में आगे बढ़ सके और तेरे पीछे चलते समय में तेरे क्रूस को उठाते हुए तेरे पीछे चल सकने के लिए अपने आप को प्रभु तैयारी कर सके और तेरे विश्वासी में मजबूत होकर तेरे पीछे चल सकने के लिए प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा से अगुवाई कर। और आज रात की सेवा कार्य को तूने शुरू से अंत तक हम सभी को अगुवाई किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हुए ये विनती प्रार्थना मांगते हैं हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन।